Good morning, students. Today I am starting new chapter perimeter and area. Any closed plane figure is bounded by line segment or curves. The total length of the bounding line segment or curve of a closed plane figure is called its perimeter. Perimeter. This is the definition up to perimeter. Any closed plane figure, एक बंद फिगर प्लेन फिगर जो बंद हो इज बाउंडेड बाय लाइन सेगमेंट, वो अपनी लाइन सेगमेंट से बाउंडेड है और कर्व से. द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंडिंग लाइन सेगमेंट और कर्व ऑफ ए क्लोज प्लेन फिगर इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर. Suppose this is our triangle ABC. There are three lines AB, BC and AC. So its perimeter of this triangle is equal to AB plus BC plus CA. AB plus BC plus CA. Sum of all sides. सभी sides का sum, that is called perimeter. You have to find perimeter of any figure. It means sum of all sides. Suppose AB 5, BC 4, CA 6. This 5, this 4 and this 6 centimeter. Then perimeter of triangle ABC is equal to AB plus BC plus CA is equal to 5 plus 4 plus 6 is equal to 15 centimeter. Now come to the exercise 1A. Find the perimeter each of the following closed figure. There are so many figures in this. So perimeter of this figure is equal to 7 plus 13 plus 8. 7 plus 13 20 plus 8 is equal to 28 centimeter. Similarly, you can find the perimeter of this, this and this. Suppose we have to find the perimeter of this figure. How many sides? 1, 2, 3, 4, 5. You add all sides. 14 plus 6 plus 14 plus 5 plus 5, that is your perimeter. Here we take one question, that is your equilateral triangle. Equilateral triangle means whose all sides are equal, that is called equilateral triangle. Perimeter of equilateral triangle is equal to sum of all sides. This is 8. It means this is also 8, this is also 8. ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है. So sum of all sides 8 plus 8 plus 8 is equal to 24 centimeter. Because its all sides are equal, so we make a formula perimeter of equilateral triangle is equal to 3 into side. With the help of this formula, you can also find the perimeter of equilateral triangle. 3 into side. 3 into length of side is 8. So 3 into 8 is equal to 24 centimeter. So you can do like this also, but this is formula method and this is general method. Sum of all sides. So you apply, I think in equilateral triangle you apply this method. Now come to the question of square whose side is 12 centimeter. Perimeter of square is equal to sum of all sides. 12 plus 12 plus 12 plus 12 is equal to 48 centimeter. Because there are 4 sides, 1, 2, 3, 4. So 12 plus 12 plus 12 plus 12 is equal to 48 centimeter. But we make a formula, perimeter of square is equal to 4 into side. So 4 into length of side क्या है 12. So 4 into 12 is equal to 48 centimeter. So you apply in case of square this formula 4 into side. Now come to the one question of rectangle. This is our rectangle whose length is 10 and breadth 7. If this is 10, it means it also 10. If this is 7, it means this is also 7. So perimeter of rectangle is equal to sum of all sides. 10 plus 7 plus 10 plus 7. 10 plus 7 plus 10 plus 7 is equal to 34 centimeter. But we make a formula perimeter of rectangle is equal to 2 into bracket L plus B. So 2 into L कितना है 10 plus 7 is equal to 2 into 17 is equal to 34 centimeter. So in case of rectangle you apply this formula. Because now you are in higher classes, so you have to take help of formula. Now come to the question number 2. Find the perimeter of triangle with side 10, 15 and 20 centimeter. It is very easy. Perimeter of triangle is equal to 10 plus 15 plus 20 and that is your answer. Now come to the question number B. Let A, B, C be an isosceles triangle. Isosceles triangle means whose two sides are equal. In which AB is equal to AC. If AB is equal to 9 centimeter and BC is equal to 6 centimeter,
देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल ABC। एक ट्राइंगल है ABC जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें दो साइड इक्वल है, AB इक्वल टू AC, बट AB कितना गिवन है 9 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। यू हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। दिस BC 6 सेंटीमीटर, AB 9 है, बट AB इज इक्वल टू AC, इट मीन्स दिस 9 तो दिस आल्सो 9, तो 9 9 और 6, तो पेरीमीटर ऑफ isosceles triangle is equal to sum of all sides is equal to 9 plus 9 plus 6 is equal to 24 centimeter. Now come to the question number C. Find the perimeter of an equilateral triangle with side 15 centimeter. In this question, the side of equilateral triangle is 15 centimeter. So perimeter of equilateral triangle is equal to 3 into side, 3 into 15 is equal to 45 centimeter. You apply formula in this question. Now come to the third ka A. Find the perimeter of a quadrilateral having side this and 6 centimeter length. You have to find the perimeter of quadrilateral. This is our quadrilateral 7, 9, 8, 6 centimeter. This 7 centimeter, 9 centimeter, 8 centimeter, 6 centimeter. Perimeter of quadrilateral is equal to sum of all sides 6 centimeter plus 7 centimeter plus 9 centimeter plus 8 centimeter. You have to write here centimeter also. 6 centimeter plus 7 centimeter plus 9 centimeter plus 8. Then you write final answer 30 centimeter. You have to write centimeter here also. Not like me. मेरी तरह मत लिखना, यहाँ भी सेंटीमीटर आपको लिखना है हर के बाद, तब योर आंसर इज 30 सेंटीमीटर। थर्ड का बी, इन द क्वाड्रिलेटरल ABCD, AB is equal to BC if AB is equal to 6 centimeter, CD is equal to 7 centimeter and DE is equal to 8 centimeter. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में जिसकी 4 साइड्स होती हैं, जिसमें AB इज इक्वल टू BC है, तो AB इज इक्वल टू BC। AB जो है वो BC के बराबर है। ये 6 है, ये 6 है और ये 7 है और 8 है। यू हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। तो पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 6, 6 6 12, 12 प्लस 8 20 प्लस 7 इज इक्वल टू 27 सेंटीमीटर। Find the perimeter of a square with side of length. There are 3 questions in this part. You have to find the perimeter of a square. Perimeter of a square is equal to what? Formula 4 into side. So 4 into 8. First question is 8 centimeter side is equal to. So perimeter of square is equal to 4 into side, and 4 into 8 is equal to 32 centimeter. Second question, side is equal to 7 whole 1 upon 4 centimeter, or we simplify 29 upon 4 centimeter. So perimeter of a square is equal to 4 into side. 4 into 29 upon 4, 4 cut by this, your answer come 29 centimeter. Third question, side is equal to 5.5 centimeter, perimeter of square is equal to 4 into side, 4 into 5.5 is equal to 22.0 centimeter. Now come to the question number 5. Find the perimeter of a rectangle with length this and breadth this. You have to find the perimeter of rectangle, and you know the perimeter of rectangle formula is equal to 2 into bracket में L plus B. This is your L and this is your B. So you apply the formula and find the perimeter of rectangle. Now I am doing fifth का second. Length is equal to 8.5 centimeter and breadth is equal to 5.25 centimeter. Length is equal to 8.5 centimeter and breadth is equal to 5.25 centimeter. 5.25 centimeter. Perimeter of rectangle is equal to 2 into L plus B. 2 into 8.5 plus 5.25. 8.5 में 5.25 जोड़ ऐड किया तो आया 13.75. तो 2 into 13.75 is equal to 27.50 centimeter. That is your perimeter of rectangle. Now come to the question number 6. If the perimeter of an equilateral triangle is 15 centimeter, find its side. एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका पेरीमीटर कितना है 15 सेंटीमीटर, सो यू हैव टू फाइंड साइड. सिमिलरली 6 का बी, इफ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 24 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स. यू हैव टू डू बोथ पार्ट. 6 का फर्स्ट, साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन 3. अगर पेरीमीटर दिया है 15 सेंटीमीटर, उसकी साइड की लेंथ निकालनी है, तो फार्मूला है साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन 3 is equal to 15 upon 3 is equal to 5 centimeter. In second case, in second question, side is equal to perimeter upon 4. 24 upon 4 is equal to 6 centimeter. Now come to the question number 7. A piece of wire is 60 centimeter long. What will be the length of each side of the wire used to form
ए स्क्वायर। एक तार है आपके पास 60 सेंटीमीटर लॉन्ग। अगर पहले आप स्क्वायर बनाते हैं, ये 60 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर है, अगर इस तार को आप स्क्वायर की शेप देते हैं तो इसकी साइड क्या होगी? साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 60/4 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, बिकॉज इसमें चारों साइड इक्वल है और टोटल 60 सेंटीमीटर है। तो इसको मोड़ के तो ये बनाया, तो यहाँ से लेकर ये पूरा 60 सेंटीमीटर है, तो इसकी साइड निकालने के लिए 60/4 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया तो 60/3, तो साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 60/3 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अगर पेंटागन बनाया, पेंटागन मतलब जिसमें 5 साइड हो, 1 2 3 4 5, ये रेगुलर पेंटागन, इसकी सारी साइड्स इक्वल है और इसी से बनाया है, तो साइड ऑफ पेंटागन इज इक्वल टू 60/5 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। और अगर हेक्सागन बनाया है तो साइड ऑफ हेक्सागन इज इक्वल टू 60/6 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, बिकॉज इन हेक्सागन देर आर 6 साइड, 1 2 3 4 5 6। तो वी हैव टू find the side of this hexagon, we divide by 6 to 60, 60 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 10 सेंटीमीटर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8, ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल 10 सेंटीमीटर। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसकी एक साइड कितनी है? 10 सेंटीमीटर, सारी साइड 10 सेंटीमीटर, बिकॉज इन इक्विलेटरल ट्रायंगल यू नो ऑल साइड्स आर इक्वल। इफ द पेरीमीटर ऑफ इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर है। फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर, इस स्क्वायर की साइड आपको फाइंड करनी है। यू हैव टू फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर। गिवन क्या है आपको? इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की वन साइड 10 सेंटीमीटर, ये 10 है तो ये भी 10, ये भी 10 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 3 इंटू साइड इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो इसका पेरीमीटर क्या है? 30 सेंटीमीटर। जो पेरीमीटर इसका है वही स्क्वायर का है, बट गिवन पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका पेरीमीटर जो है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के बराबर है। इट मीन्स पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज आल्सो 30 सेंटीमीटर, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर 30 है और इसका जो पेरीमीटर है वो इसके स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर है। सो इट मीन्स पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। So side of square is equal to perimeter upon 4 is equal to 30/4 is equal to 7.25 centimeter. Similarly, question number B. The length of each side of a square is 6 centimeter. एक स्क्वायर है जिसकी एक साइड की लेंथ क्या है? 6 सेंटीमीटर। फाइंड द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद इट्स पेरीमीटर इक्वल टू दैट ऑफ द स्क्वायर। बिल्कुल सेम क्वेश्चन 8 का बी। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये स्क्वायर है, इसकी साइड 6 है, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड 4 इंटू 6 इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ये स्क्वायर है जिसका पेरीमीटर कितना आया? 24। इसका जो पेरीमीटर है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के पेरीमीटर के बराबर है, बट गिवन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इट मीन्स पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 24। उसका भी पेरीमीटर क्या होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल का 24। So side of equilateral triangle is equal to perimeter upon 3 is equal to 24/3 is equal to 8 centimeter. Now come to the question number 9. The length and breadth of a rectangle are 12 centimeter and 9 centimeter respectively. एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर है और ब्रेथ 9 सेंटीमीटर। फाइंड द साइड ऑफ ए स्क्वायर विद इट्स पेरीमीटर इक्वल टू दैट ऑफ द रेक्टेंगल। आपको स्क्वायर की साइड निकालनी है जिसका पेरीमीटर इस रेक्टेंगल के पेरीमीटर के बराबर है। फर्स्ट पार्ट में दिस इज आवर रेक्टेंगल हुज लेंथ इज दिस एंड ब्रेड्थ इज दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू 12 प्लस 9 इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। बट इसका पेरीमीटर स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। इसका मतलब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो गया? 42 सेंटीमीटर, बिकॉज बोथ पेरीमीटर आर इक्वल। तो साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 42/4। आफ्टर reducing our answer come 10.5 centimeter. In second case, perimeter of this rectangle is equal to perimeter of equilateral triangle. Perimeter of equilateral triangle is equal to perimeter of rectangle. So perimeter of equilateral triangle is equal to 42 centimeter because perimeter of rectangle is 42 centimeter. तो इसका मतलब क्या है कि equilateral triangle का perimeter भी 42 centimeter होगा। Then side of equilateral triangle is equal to
पेरीमीटर अपॉन 3 यानी कि 42 अपॉन 3 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 10, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 38 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स ब्रेड्थ। एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर इतना है, लेंथ इतनी है, तो उसकी ब्रेड्थ निकालनी है। सेकंड पार्ट, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 40 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इतनी है, तो उसकी लेंथ निकालनी है। बोथ क्वेश्चन आर सेम, बट इन फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड ब्रेड्थ एंड सेकंड में लेंथ निकालना है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10, गिवन पेरीमीटर 38, लेंथ 12 सेंटीमीटर, so you find with the help of this formula breadth is equal to perimeter upon 2 minus length. Perimeter 38 upon 2 minus length, 38 upon 2 किया तो 19 minus 12 is equal to 7 centimeter. In second part you have to find length, तो length is equal to perimeter upon 2 minus breadth हो जाएगा, यहाँ breadth हो जाएगा और यहाँ length हो जाएगा, तो you can do easily. So you can do easily this part also, बिकॉज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया ही है और ब्रेड्थ इतना है, तो लेंथ निकालना है। तो लेंथ इज इक्वल टू क्या फार्मूला होगा, पेरीमीटर अपॉन 2 माइनस ब्रेड्थ। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए टेबल टॉप मेजरिंग 2 मीटर 15 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर 65 सेंटीमीटर। यू हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ टेबल टॉप जिसकी लेंथ इतनी है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ कितनी है 1 मीटर 65 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर निकालना है। इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। ये टेबल टॉप है जिसकी लेंथ 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, यू कैन से 2 मीटर 15 सेंटीमीटर 2.15 मीटर एंड ब्रेड्थ 1 मीटर 65 सेंटीमीटर, यू कैन से 1 मीटर 65 सेंटीमीटर 1.65 मीटर। तो आपको लेंथ ये है 2.15 और ब्रेड्थ 1.65। पेरीमीटर ऑफ टेबल टॉप इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, दिस इज द फार्मूला ऑफ रेक्टेंगल, 2 इंटू दिस प्लस दिस, 2 इंटू 3.80, आगे 7.60 मीटर। तो 7.60 मीटर को वी कैन से व्हाट, 7 मीटर 60 सेंटीमीटर, 7 मीटर 60 सेंटीमीटर। अगर आप यहाँ तक भी आंसर देते हैं दैट इज योर आंसर राइट, बट इफ यू गिव लाइक दिस देन योर आंसर आल्सो राइट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 12, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 42 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल है, उसका पेरीमीटर कितना है 42 सेंटीमीटर एंड इज लेंथ इज डबल इट्स ब्रेड्थ, उसकी जो लेंथ है वो ब्रेड्थ की डबल है। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। गिवन है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 42 सेंटीमीटर और जो लेंथ है वो ब्रेड्थ की डबल है, तो हमने लेट किया ब्रेड्थ कितना x, लेट द ब्रेड्थ इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। सो लेंथ क्या होगा 2x, क्योंकि x का डबल 2x होगा। तो पेरीमीटर ऑफ इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू 2x प्लस एक्स, 2 इंटू 2x प्लस एक्स कितना हुआ 3x इज इक्वल टू 6x। दिस इज द पेरीमीटर 6x, बट दिस आल्सो द पेरीमीटर, बोथ पेरीमीटर आर दिस आल्सो पेरीमीटर and this also perimeter, so it means 6x is equal to 42. According to question 6x is equal to 42, x is equal to 2, 42 upon 6 is equal to 7. The value of x is equal to 7. Now put the value of x here and x here. When you put the value of x here, so breadth is equal to 7 centimeter and length is equal to 2x is equal to 2 into 7 is equal to 14 centimeter. So length and breadth 7 है और length 14 centimeter. Question number 13, the shortest side of a triangular garden is 20 मीटर। एक गार्डन है, उसकी सबसे छोटी साइड कितनी है 20 मीटर। इफ इट्स पेरीमीटर इज 130 मीटर, उसका पेरीमीटर कितना है 130 मीटर एंड इट्स लॉन्गर साइड इज 3 टाइम इट्स शॉर्टेस्ट साइड, जो लंबी साइड है वो 3 टाइम है शॉर्टेस्ट साइड की। फाइंड द थर्ड साइड ऑफ द गार्डन। क्या दिया है, एक ट्रायंगल गार्डन है जिसकी सबसे छोटी साइड क्या है 20 मीटर, उसका पेरीमीटर क्या है 130 मीटर, पेरीमीटर का मतलब तीनों साइड का सम, और उसकी लॉन्गेस्ट साइड क्या है 3 टाइम इट्स शॉर्टेस्ट साइड। फाइंड द थर्ड साइड ऑफ द गार्डन। ये आपका दिस इज योर गार्डन, शॉर्टेस्ट साइड 20 मीटर और जो लॉन्गेस्ट साइड है वो इसका 3 टाइम है, यानी कि 3 इंटू 20 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, और इसका जो पेरीमीटर है वो कितना है 130 मीटर। पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सो थर्ड साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर में से, मतलब इसकी पेरीमीटर मतलब इसका तीनों का सम, दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर। तो इन तीनों के सम में से इसको प्लस इसको करके इसको प्लस करके माइनस कर देंगे। तो सो थर्ड साइड इज इक्वल टू 130 माइनस 20 प्लस 60 इज इक्वल टू 50 मीटर।
क्वेश्चन नंबर 14. द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 42 सेंटीमीटर. एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका पेरीमीटर कितना है? 42 सेंटीमीटर. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर ईच साइड ऑफ विच इज डबल द साइड ऑफ ट्रायंगल. पेरीमीटर निकालना है स्क्वायर का जिसकी एक साइड उस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड की डबल है. व्हाट वी डू? दिस इज आवर इक्विलेटरल ट्रायंगल. इसका पेरीमीटर कितना है? 42, मतलब तीनों साइड का सम. तो साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन 3, 42 अपॉन 3 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर. तो इसकी एक साइड कितनी आ गई? 14, 14, 14. बट जो स्क्वायर है उसकी साइड 14 की डबल है, बट साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 14, 28 सेंटीमीटर. देन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 4 इंटू 28 इज इक्वल टू 112 सेंटीमीटर. एक बार और ध्यान से सुनो, लिसन वन टाइम अगेन. इसका पेरीमीटर दिया है, इसका पेरीमीटर कितना है? 42. तो इसका मतलब साइड कितनी हो गई? 14 सेंटीमीटर. और जो दूसरी फिगर है स्क्वायर, उसकी जो लेंथ है इसकी डबल है. तो अगर ये 14 है तो उसकी लेंथ क्या होगी? 28. साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 28. और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला पता ही है, 4 इंटू साइड 4 इंटू 28 इज इक्वल टू 112 सेंटीमीटर. ए रेक्टेंगुलर प्ले ग्राउंड is 42 meter long and 38 meter broad. If a girl round the playground twice, then find the distance covered by her. एक रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड है जो 42 मीटर लॉन्ग है और 38 मीटर ब्रॉड है. एक लड़की है जो उसके 2 चक्कर लगाती है, तो उसका कितना डिस्टेंस कवर करती है? वेरी सिंपल, पहले उसका पेरीमीटर निकाल लो और उसके बाद उसको डबल कर दो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड दैट पेरीमीटर, मतलब डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड. एक चक्कर में वो कितना चलेगी? तो इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू आ गया 160 मीटर. तो अगर वो यहाँ से भाग के यहाँ 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 आती है तो पूरा एक चक्कर लगाती है, यानी कि इसके पेरीमीटर के बराबर. तो इसका मतलब कितना है? 160 मीटर एक चक्कर में. डिस्टेंस कवर इन 2 राउंड इज इक्वल टू 2 इंटू 160 इज इक्वल टू 320 मीटर. क्वेश्चन नंबर 16. ए फील्ड इज इन द शेप ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 150 मीटर. एक फील्ड है जिसकी साइड क्या है? स्क्वायर की शेप का है, जिसकी साइड क्या है? 150 मीटर. द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड इज ₹45 पर मीटर. फाइंड द कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड. वेरी सिंपल क्वेश्चन. दिस इज आवर स्क्वायर फील्ड जिसकी साइड 150 मीटर है. तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 600 मीटर आ गया. इसका पेरीमीटर, इसके चारों तरफ फेंसिंग करानी है, दीवार खड़ी करवानी है. तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ 1 मीटर इज इक्वल टू ₹45 और कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ 600 मीटर इज इक्वल टू 600 इंटू 45 इज इक्वल टू 27,000 रुपीज़. 27,000 रुपये, 27,000 रुपीज़ का खर्चा आएगा इसकी चारों दीवारों को फेंसिंग कराने में. ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड मेजर 0.8 किलोमीटर बाई 0.6 किलोमीटर. ईच साइड इज टू बी फेंस्ड विद द 3 rows ऑफ वायर. Find the length of the wire needed to the cost of fencing ₹50 per meter. Find the total cost of fencing the land. You have to find 2 things. Find the length of the wire, कितना तार लगेगा, और what is the cost. Suppose this is our rectangular piece of land जो 0.8 किलोमीटर लंबा है. 0.8 किलोमीटर का मतलब 800 मीटर. 0.6 किलोमीटर का मतलब 600 मीटर. तो इसकी लेंथ 800 मीटर, ब्रेड कितनी है? 600 मीटर. So first of all we find the perimeter of land. The perimeter of land is equal to 2 into L plus B. 2 into 800 plus 600 is equal to 2 into 1400 is equal to 2800 मीटर. तो इसका पेरीमीटर कितना है? 2800 मीटर. अब इसमें हमें 3 चक्कर तार के लगाने हैं, 3 राउंड चारों तरफ. तो 1 राउंड में कितना तार लगेगा? 2800 मीटर. इन 1 रो नीडेड वायर 2800 मीटर. इन 3 रो नीडेड वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 2800 इक्वल टू 8400. तो बाजार से आपको इतना तार परचेज करना. यू हैव टू परचेज 8400 मीटर वायर फ्रॉम मार्केट और 8.4 किलोमीटर. नाउ 1 मीटर तार का कॉस्ट कितना? 50 रुपीज़. कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ 1 मीटर इज इक्वल टू ₹50 और कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ 8400 मीटर इज इक्वल टू
50 into 8,400 is equal to 4,20,000 rupees. So the cost of 8,400 meter wire is equal to 4,20,000 rupees. Last question, find the length of the wooden strip required to frame a photograph of length 35 centimeter and breadth 25 centimeter. If the wooden strip costs 50 paisa per centimeter, find the cost of the framing the photograph. लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप कितना है 35 सेंटीमीटर, ब्रेड कितना है 25 सेंटीमीटर. सो पेरीमीटर ऑफ फ्रेम इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर. तो पेरीमीटर ऑफ फ्रेम कितना है 120 सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप कितना हो गया 120 सेंटीमीटर, और अगर इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 120 अपॉन 100 इज इक्वल टू 1.2 मीटर. नेक्स्ट पार्ट, कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्ट्रिप इज इक्वल टू 50 पैसा. तो कॉस्ट ऑफ 120 सेंटीमीटर स्ट्रिप इज इक्वल टू 120 इंटू 50 इज इक्वल टू 6,000 पैसा. एंड वी हैव टू चेंज पैसा इन रुपीज. वी हैव टू डिवाइड बाई 100. 2 0 कट बाई 2 0. तो योर आंसर कम इज रुपीज 60. 60 रुपीज योर कम. Now your exercise will finish. All question I have done. All question of this exercise I have done 1A. And this exercise is your coming in half yearly exam. Next exercise area is not coming in the half yearly exam. So I have completed perimeter and area of exercise 1A. If you feel any problem in any question, you can ask me, discuss me anytime. I am always for you. Thank you very much.